مخصوص انداز میں آپ کو اور مجھے مستفیض فرمائیں کہ ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یا امام المنتقم۔ سب مل کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائیں، ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ یا امام المنتقم، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین، اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون عباس، اللہ جل اللہ جل، جنوبی امام زمانہ علیہ السلام الانصار صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف۔ نادی علی مظہر اللجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سیل جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ضرور۔ میں اس جگہ پہ یا اس سے پہلے جو دو خطابات کر چکا ہوں، محسن کا، شفیق کا، مہربان باپ کا، کریم آقا کا، منعم ازل کا، رحیم ازل کا احسان ہے۔ یہاں کی نشست، یہاں کی محفل شاید ان دو محفلوں سے تھوڑی مختلف ہو۔ تھوڑا جاگ کے بیٹھیے گا، آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اسی طرح تھکے ہوئے، گھبرائے ہوئے تو پھر شاید میں ٹاپک چینج کر دوں گا۔ آپ کے بابا خصوصی مجھے بہت خوشی ہوئی، واقعی بھائی عمران نے جتنا کہا تھا بھائی عدنان کے بارے میں نے ان سے کہنے سے زیادہ ان کو پایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب تک عطا نہ ہو وفا نہیں ہوتی ہے۔
ایک چھوٹا سا شعر کا ٹکڑا شاید لوگ آئے تھے اپنی محبتوں کا حساب کرنے. ہر دور میں ملک صاحب میں شاید وہاں نہیں بہت ساری باتیں کر پایا, میرا دل ہے چلیں آپ اتنا سفر کر کے ساتھ ساتھ تشریح جی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, بسم اللہ متوجہ رہیے گا. لوگ آئے تھے ہر دور میں مختلف شکلوں میں, مختلف عقلوں کے ساتھ, ہر قسم کا ظرف لے کر لوگ آئے تھے محبتوں کا حساب کرنے. انسانیت کا مزاج اور معیار حقیقت, معیار ظرف بہت کم انسانیت پہ رہا ہے. جتنی بھی مخلوق آئی ذاتی فائدہ دیکھ کے, ممتاز شاہ جی, امتیاز شاہ جی, ذاتی فائدہ دیکھ کے اس گھر سے پیار کرنے لگی. مجھے ملے گا کیا, میرے لیے ہوگا کیا, مجھے آگے نصیب کیا ہوگا. کروڑوں درود و سلام ہوں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر پر. ناصر رسول نے شاہ جی اپنا سب کچھ لٹا کر بھی محمد سے یہ نہیں کہا مجھے ملے گا کیا. بہت شکریہ, مہربانی. مثال قائم کر دی سرکار نے, کہیں نہیں ملا, غیروں نے بھی نہیں لکھا, اپنوں نے بھی نہیں لکھا کہ سرکار نے کہا ہو محمد بھتیجے اور کچھ نہیں, میرے نام کی صورت تو اتروا دے. میں نے اتنا کچھ کیا, میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا, میں نے اپنے بیٹے کو تیرے بستر پر سلا دیا, میرے بیٹوں نے تیرا قدم قدم پہ ساتھ دیا. نہیں نہیں, قطعاً مجھے نہیں ملا کہ کہیں سرکار نے صلہ مانگنا تو بہت دور کی بات ہے, احسان بھی جتایا ہو. اچھا جی, احسان بھی. عدنان بھائی ماشاءاللہ پڑھ بیٹھے ہیں کتابوں میں, میں نچوڑ ساری گفتگو میں دینے کی کوشش کروں گا. ذرا برابر بھی سرکار نے کہیں احسان جتانے کی کوشش نہیں کی. یہی فرماتے رہے محمد جب تک میں ہوں میں حاضر ہوں, میری اولاد جب تک ہے وہ بھی حاضر ہے. محمد تجھے کچھ نہ ہو, ان کو جو ہوتا ہے ہو جائے. یہ بستر رسول پہ امیر ممکنات کا سونا, یہ بھی ایک عرفان کے رازوں میں سے راز ہے. وہ مشکل ترین جگہ تھی جہاں یا علی زندگی میں پہلی دفعہ آرام سے سوئے ہیں. پوری اپنی ظاہری زندگی میں پہلی دفعہ کچھ آرام پسند فرمایا ہے, بے خوف و خطر, اطمینان کے ساتھ. بات کیا چل رہی تھی کہ سرکار نے کسی بھی موڑ پہ احسان نہیں جتلایا. ملک صاحب میں بہت بڑا میسج دینے لگا ہوں, چھوٹے ہیں آپ, توجہ کرنی ہے میرے بھیا. یقین جانیے یہیں سے ہی شیعت کی ابتدا ہے. یہ جس شیعہ کا شناختی کارڈ پہ لکھوا کر یا اپنے گھروں پہ کالے علم لگوا کر یا محرم میں کالے کپڑے پہن کر ہم اظہار کر رہے ہیں, یہ شیعت نہیں, یہ محبیت ہے. میں نے کہا نا کوئی دو چار باتیں آپ لوگوں سے دل کی ہو جائیں, زیادہ تو نہیں, رات کا ٹائم میں تھک بھی نہ جائے. یہ محبیت ہے, شیعت نہیں. محب اور شیعہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. محب ہر وہ بندہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جو ان کو چاہتا ہو. شیعہ ہر دور میں صرف وہ ہوتا ہے جن کو یہ چاہتے ہو. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے کیا کہنے ہیں, مہربانی. محب ہر دور میں ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو ان کو چاہتا ہو. شیعہ وہ ہوتا ہے جن کو یہ چاہتے ہیں. یہ اس بات ذہن میں رکھیے گا. میں پھر واپس جانے لگا ہوں. محسن اسلام بیضۃ البلد, سردار عرب و عجم, بابا ولایت ہے جی.
सरकार के कभी मौका हुआ सरकार पे इंशाल्लाह गुफ्तगू बड़ी जरूरी है, सरकार पे गुफ्तगू होनी चाहिए, गैरों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये मोहसिन इस्लाम की बदौलत आज दीन जिंदाबाद है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं का घर अतर, इन्हीं के घर अतर के शहजादे, इन्हीं के सारे हैं, पूरा दीन इन्हीं के गिर्द घूमता है। सरकार ने जो सिखाया ये तरीका, इस तरीके को अल्लाह ने अपने पाक कलाम की आयत बना दिया। किस शक्ल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता। बहुत शुक्रिया मेरा मोहम्मद, मेरा हबीब, मुझे इतना पसंद आया अबू तालिब का अमल। मेहरबानी, मैंने कहा थोड़ा जाग के सुनना है, हट के गुफ्तगू इमरान भाई, मुझे इतना पसंद आया अबू तालिब का अमल, मैं इस अमल को उम्मत में जारी रखना चाहता हूं हुक्म के तौर पर। चैलेंज है मलिक साहब, मेरे भाई, मेरा चैलेंज है, पूरा कुरान पढ़ो। किसी भी नबी ने, भाई इमरान मेरी तरफ देखना, मैं बड़े नाजुक और अहम मोड़ पे आपको ले आया हूं। किसी भी नबी ने, पूरी तारीख पढ़ के देखे, किसी भी नबी ने अजर नहीं मांगा। हमेशा हर नबी पढ़ के देखे कुरान, हर नबी ये कहता रहा हमारा अजर अल्लाह के पास, हमारा अजर अल्लाह के पास, हमारा अजर अल्लाह के पास। अंबिया के नचोड़ ने मिजाज बदला, कहा मेरा अजर अल्लाह के पास नहीं, मेरा अजर उम्मत के पास है। भैया दनान, यकीनन आपका को कमाल छुपा है, मैंने टॉपिक छेड़ना नहीं था, बात छिड़ गई। जी बिस्मिल्लाह, तवज्जो कीजिएगा। मेरा अजर उम्मत, मेरा बीबी से कह दे इनसे, और ये ज़हन नशीन रखना, जहां पूरे कुरान में अल्लाह कुल कहता है, इसका मतलब कह दो, मेरा हबीब तेरे लिए नहीं। भाई क्या बात है, भाई आपकी क्या बात है भाई इमरान शाह जी, तेरे लिए नहीं, इनको कह दे, कुल्ला साल, इनको कह दे, इनको कह दे, कोई अजर नहीं सिवाय इस घर के साथ मवद्दत करे। ये मवद्दत का, मलिक साहब मैं एक बड़ी अहम बात करने लगा हूं, गौर कीजिएगा। ये मवद्दत की आयत जनाबे सलेमान ने मोहम्मदी के रसूल से मिलने के बाद उतरी है। फिर मेरा सवाल है, मुझे कोई मुतमैन करके दिखाए, सलमान को मवद्दत किसने सिखाई थी? किसने सिखाई थी? पूरी जिंदगानी जनाब सलमान की मवद्दत के गिर्द घूमती है। क्या कमाल है, सारी रात सुन बैठे हो, झाड़ू जारोबकशी सुन बैठे हो ना, है जी, वो करते हैं, दिन में कुर्ब वली लासर में रहते हैं, कभी किसी के सामने फख्र करके नहीं कहा मैं ये करता हूँ, ओए मेरी ड्यूटी बहुत बड़ी है। हाँ कभी नहीं आबिद, हाँ विलायत की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करो कि पिंडी गेप भी मैं गुजारिश कर रहा था, हमेशा आपको विलायत, बंदा जो होगा विलायती वो डाउन टू अर्थ मिलेगा। हाँ पहचान है विलायत की, कोई बहस करेगा वो उस फरमान को सामने रखेगा, मेरे हबीब अगर ये तुझे कुछ कहें तो सिर्फ सलाम किया कर, बहस ना किया कर। ये इस काबिल ही नहीं है मेरे हबीब तुझसे बहस करे, क्योंकि इनको तेरी हकीकत का अंदाजा ही नहीं है। मुतवज्जे है? अच्छा मैं गुजारिश क्या कर रहा था, बेटा बैठ जाओ, तशरीफ रखो, आपने मुतवज्जे मेरी तरफ रहना है। जनाब सलमान को मवद्दत किसने सिखाई? इतना खूबसूरत इजहार मवद्दत, इतना खूबसूरत कब से सीख रहा है? सदियों से। तलाश मोहम्मद में अदायगी हक के मवद्दत के लिए सरगर्दा फिरता है, एक एक से पूछता है, मेरे ईसा ने कहा था एक आएगा, मैं ईसा को, हवारियों में से था ना, मैं ईसा को समझता था यही होगा, मगर यही ने कहा था मैं नहीं हूं कोई और होगा।
पहचान। जनाब ईसा ने इनको फरमाया था कि आप तलाश में निकला, हक की तलाश वाले को हक मिल जाता है। किसी से पूछते, शादी में तो देखना कोई बात नहीं बच्चे, किसी से पूछते तलाश मोहम्मद का आसान तरीन तरीका बताओ, तलाश अहमद का आसान तरीन तरीका। भाई गदीर शाह जी, किसी ने कहा बहुत आसान तरीन तरीका है, कोई कहे ना मोहम्मद है, किसी के कहने पे एतबार ना करना। आसान तरीन तरीका है तश्त लेना, तश्त में खजूरें लेना, खजूरें ले जाना और पेश करना, सिर्फ नीयत का फर्क। दोनों दिन तश्त खजूरें, पहले दिन नीयत और दूसरे दिन नीयत और। पहले दिन नीयत ये रखना मैं सदका लेकर मोहम्मद के पास जा रहा हूं, और अगर सदका खा ले वो मोहम्मद नहीं। अगले दिन अंदाज बदलना, अगले दिन ये नियत करना मैं सदका नहीं, मैं इनका दिया इनको देने जा रहा हूं। ऐसे ही हुआ। सरकार ने पहले दिन, सुन बैठे हो पढ़ने वालों ने, सरकार ने पहले दिन साहबा से कहा ये खाओ तुम्हारे लिए। अली को नहीं खिलाया, साहबा से कहा तुम खाओ। क्या बात है। अगले दिन सरकार ने फरमाया आज या अली और मैं मिल के खाएंगे। पहचान हो गई, पता चल गया, घर में रहना शुरू कर दिया। खिदमत इतनी की अल्फाज ही नहीं है। सफर करते 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 ईमान के 10वें दर्जे पे पहुंच गया। ऐसे सब बात करता जाऊं, 10वां दर्जा, 10वां दर्जे 10, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। दर्जे 10, सलमान 10वें पे है। जिनका एक नौकर 10वें पे हो उसका मौला क्या होगा। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कमाल अता है, सलमान ने मांगा नहीं, मवद्दत ज़हन में थी। थोड़ी बेटा एक और ऐसा कर, मैं तो देखना, सलमान ने किसी मोड़ पे गदीर भाई सवाल नहीं किया कि सरकार मैं आया हूँ, इतने अरसे से मैं जिंदा था, मैं आपके इंतजार में था। वैसे सलमान ने एक बात हमें समझाने की कोशिश जरूर की है, अगर इंतजार सच्चा हो तो मौत नहीं आती है। क्या बात है, आपके हाथ उठाने को सलाम, मेहरबानी। ये सिखाया जनाब सलमान, इंतजार सच्चा हो, मेहरबानी। किसी भी मोड़ पर सरकार ने, सलमान ने सरकार से मांगा कुछ नहीं। सरकार में झाड़ू देता हूँ, कोई शफकत कर दीजिए, मेरे हक में दुआ कर दीजिए। आजकल हम आमतौर पे एक दूसरे को कहते हैं मोहताज दुआ, है नहीं। हमारा एक वतीरा चल पड़ा है, उसको कहेंगे उसको मिलेंगे मोहताज दुआ, वो भी कहेगा इल्तमास से दुआ। बस इसी चक्कर में सारी जिंदगी मोहताज दुआ, इल्तमास से दुआ, मोहताज दुआ। खुदा की इस करीम हस्ती की कसम जो इस वक्त जिक्र के वारिस है, अगर बंदा विलायत की हकीकत को अपने अंदर उतार ले, मासूम फरमाते हैं वो खुद दुआ है, कहना नहीं पड़ता। और ये बात आपके इमाम ने, मैंने गदीर के जश्न में कही है। साले साहब, मलिक साहब मासूम फरमाते हैं अगर लोगों को गदीर की हकीकत का अंदाजा हो जाए, विलायत की हकीकत का पता चल जाए, फरिश्ते दिन में 10 मरतबा उस बंदे से हाथ मिलाए। अगर बंदे को विलायत की हकीकत का अंदाजा हो जाए, इसका मतलब मासूम जानते थे वह इमरान, लोगों को विलायत की हकीकत का अंदाजा कम होना है। घबरा तो नहीं गए, अभी तो नींद बांधी आई, मेरा दिल है को 3-4 घंटे का खिताब। अच्छा भाई अदनान की मोहब्बत है भाई, बिस्मिल्लाह भाई ना। गुजारिश कर रहा था, इसने सरकार से सवाल नहीं किया, इसने सरकार की खिदमत इतनी की, नुसरत इतनी की, इतनी नुसरत की कि करीमों ने सवाल ना करने पर अता किया, क्योंकि रखते जो किसी का नहीं थे। सबसे पहले रोजबा को सलमान बनाया, फिर सलमान को मिन्ना बनाया, फिर मिन्ना को कमांडर महदी बनाया। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई इमरान शाह जी, भाई इमरान शाह जी, मैं कभी कभी सोचता हूँ
मिन्ना अहलुल बैत कोई छोटी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री है, छोटी डिग्री है। अदनान भाई बड़ी अरवाह मौजूद है आज, मैं तो आपको ये भी बता रहा। ना समझ आए, सुबह सुबह दिन जब चढ़े ना समझ आए, इतनी सी चीनी लेना, गली के किसी नुक्कड़ पे डाल देना, चींटियों को ना बुलाना, अपने मतलब की चीज को बुलाना नहीं पड़ता। पता नहीं जिक्र के लिए कौन कौन तशरीफ फरमा, तवज्जो कीजिएगा जी। जनाब सलमान मोहम्मद ने अपनी पूरी जिंदगी मासूम से कुछ मांगा नहीं। मिन्ना अहलुल बैत, कोई शक नहीं, छोटा खिताब नहीं, बहुत बड़ा खिताब है। लेकिन साहिबान मुहक्किकीन मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, मिन्ना अहलुल बैत से बड़ा खिताब है महदी का कमांडर होना। साहिबान हक़ाइक़ इस बात की तायद करेंगे, मिन्ना अहलुल बैत भी छोटा खिताब नहीं, अता किया, मांगा नहीं। मैंने सलमान से पूछा, सलमान कुछ तो मांग लेता, जन्नत मांग लेता इस घर से। कहा तुम्हें अक्ल ही नहीं है, हमेशा जन्नत के गिर्द घूमते हो, असल में तुमने जन्नत का कुर्ब पाया नहीं, मैं रहता ही जन्नत में था। इससे बड़ी और जन्नत क्या होगी। मैंने कहा सलमान मैं समझा नहीं। कहा रसूल ने फरमाया जो हमारा इरफान पा जाए वो तालिब जन्नत नहीं होता, जन्नत उसकी तालिब होती है। जनाब सलमान मोहम्मदी को किसने सिखाई थी मवद्दत? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। रसूल के ऐलान के बाद तो लोगों ने सीखी। सरकार मोहसिन इस्लाम ने भी पहले हक के मवद्दत अदा किया। 40 साल जिस अबू तालिब को इमाम अल अंबिया उठ के सलाम करे सुबह सुबह, अल्लाह अकबर। बच्चा सुबह सुबह उठ के बड़ों को सलाम नहीं करता। अच्छा, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुहक्किकीन ने लिखा है, मलिक साहब के खाना जब लंगर पाक लगता था घर यातर में, जनाब अबू तालिब हुक्म फरमाते थे कोई भी लंगर को हाथ ना लगाए जब तक मोहम्मद जूठा ना करे। यकीन जानिए, मैं ना पढ़ा तो मैंने कोई भी हाथ ना लगाए लंगर जब तक मोहम्मद जूठा। अल्लाह अकबर, क्या अकीदत है, क्या कमाल छुपा है। बात तवील ना हो जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मांगी? मवद्दत है। किसके हुक्म से? अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के कुल कहते ही है मवद्दत करो। सलमान, मिसम, बूजर, मिकदाद, हुज़ैफा यमानी, इन चंद आशिकों को समझ आई मवद्दत क्या होती है, मवद्दत करनी कैसी होती है। आज दिन था जनाब मैसम का, और मैसम के इस दिन की मुनासबत से सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर किसी का दिल हो कि वो विलायत की हकीकत को समझे तो कम अज कम हक के मवद्दत मैसमी अदा करे। बैठ जाओ बेटा, दरूद पढ़ो शहंशाह की मुकद्दस। थक गए अदनान में बजमा तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ हो। माशाल्लाह इतनी दूर से मेरे भाई इम्तियाज मुमताज शाह जी, ये मेरी इतनी दूर से जब से पिंडी के बेंटर रहा हूँ मेरे साथ दौड़ रहे हैं। भाई इमरान शाह जी, मलिक आबिद साहब, बाकी अहबाब 5-7 हैं, साथ सफर कर रहे हैं। पहले तूत गए, फिर पिंडी गए, भी आए। चलो कोई इनके हिस्से में झोली में लंगर रूहानी डाले। अब ये इन पे है कि ये भूखे हैं रूहानी लंगर के या परबाश है। अगर परबाश होंगे, इनको तलब नहीं होगी तो फिर इमाम बारगाह में डाल जाएंगे। अगर इनकी रूह को तलब होगी तो जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, भी झाड़ के झोलियां झाड़ के इधर ही डाल जाएंगे इमाम बारगाह में। पहले भी इधर बहुत इरफान पड़ा है। में सरकारे मैं समझता मार, सरकारे बुजुर्ग, सरकारे कंबर, बार बार मैं इनके इसलिए नाम ले रहा हूँ, इन्होंने मवद्दत का तरीका सिखाया है।
आओ सरकार अबू तालिब तो हो गए कुल्लो ना मोहम्मद के हामिल। आओ सलाम करें सलमान को। सलमान तुझसे बहुत सोने सीखी, तूने किससे सीखी? नहीं गौर फरमाया। सफर करते 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 आओ करबला ले चले। सदियों से करबला बयान हो रही है। मलिक साहब मेरी तरफ देखना है भाई। सदियों से करबला। मलिक साहब भी बिस्मिल्लाह पिंडी भट्टियां से पिंडी गेट से फौरन हमारे साथ तशरीफ ले आए। बड़ी बात है, अपनी मसरूफियत होगी, अपने काम होंगे, भाई दूसरे भी आ गए। समेटने की कोशिश कीजिएगा। करबला सदियों से हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उतार नहीं सके। करबला सुनना और है, सुनाना और है, उतारना और है। जिसने करबला उतारी उसके लिए हुक्म है कि वो आज भी करबला में है। जिसने उतारी, जिसने सुनी, उसने तो सिर्फ सुनी ना, इधर से सुनी तो इधर से 10 मुहर्रम के बाद मुहर्रम खत्म हो गया, मजलिस आई, सुबह शुरू हुई, शाम खत्म हुई, वो खत्म हो गई, क्योंकि करबला सुनी थी, उतारी नहीं थी। जिसने करबला उतारी उस पे हुई करबला तारी। जिस पे हुई करबला तारी उसमें है हकीकत में वफादारी। क्या कमाल मिजाज है 72 का। क्या मवद्दत के आला मयार पे खड़े हैं 72। मलिक खालिद साहब एक भी आशिक इमाम जमाना की खिदमत में ये नहीं कह रहा आका हुसैन हम आए अपनी जाने हथेलियों पर रखकर तेरी ज्योति पर कुर्बान करने, इसका तेरा अल्लाह सिला क्या देगा। या हमारी कुर्बानियां जब पेश हो गईं, हमारा आगे क्या बनेगा। मुझे एक बात बताओ, साहिबान महक्किक मेरे सामने बैठे हो चंद बंदे, मेरे भाई की सूरत में, मेरे वाजिबुल इहतराम मलिक साहब की सूरत में, करबला इनको पता था जहां हम कुर्बान होंगे ये खाक शिफा बनेगी? पता था? बोले भाई अदनान, पता था? सरकार ने यहां तक इशारों में जरूर पसंद फरमाया, ये वो मुकद्दस जमीन है जहां अंबिया गुजरते हुए ठोकरें खाते रहे हैं। ये अजीम जमीन है, यहाँ हमारा खून गिरेगा। उनके ज़हन में ये नहीं था कि हमारा खून लोगों की सजदेगाह बनेगा। बड़ी बात कर गया, पता नहीं किस अंदाज से ले गया, पता नहीं, नहीं 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 नहीं, देर हो गई। उनको ये नहीं मालूम था कि हमारा खून सजदेगाह बनेगा। अदामी में बात रोक के एक बात आज करने लगा हूँ। बंदों को गर्मी बड़ी लग रही है, ठंडा करते हैं इंशाल्लाह एक बात करके। थोड़ा सा सख्त टॉपिक छेड़ बैठा हूँ। अच्छा बिस्मिल्लाह। करबला की मट्टी कितनी मुकद्दस है, कितनी मुकद्दस है, कितनी मुकद्दस है। एक जगह मैंने खिताब में गुजारिश की थी, इस मट्टी में वही शामिल हो सकता है जिसे हुसैन शामिल करे। एक साहब खड़े हो गए, एक जगह मजलिस पड़ी, एक मलिक साहब खड़े हो गए, कहते हैं जी बुखारी साहब, वो जो आप कहते हैं 9 लाख, उसमें से कई फिन्नारे व सकर हुए, दुश्मनाने हुसैन, दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने तौहीद, वो भी तो फिन्नारे व सकर हुए, उनका खून कहां चला गया? मैंने कहा मैं शिया किताबों से नहीं, सुन्नी किताबों से बताता हूं। मैंने ना पढ़ा होता, मैं ना बताता। कहने लगे जी बताएं उनका खून कहां? आप कह रहे जिनको हुसैन कबूल करे वही मट्टी में शामिल हो सकते हैं, बाकियों का खून कहां चला गया? मैंने कहा अहले सुन्नत ने लिखा है हुसैन तो वो शहंशाह है कि जहां पांव रखे उस जमीन को खाक शिफा बना देता है। हुसैन तेरे मुकाबले में किसी दौर में कोई भी आ जाए वो हलाल ही नहीं होता। अहले सुन्नत लिखा। और अगली बात कमाल कर गया उसने, करबला की मट्टी में ये कमाल छुपा है, कबूल ही हलाली को करती है। चेक कर लेती है। नारे हैदरी। कौन शामिल हुए? जिनको हुसैन बादशाह ने कबूल किया, करबला की मट्टी में शामिल।
बार बार सरकार फरमाते रहे कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। सरकार ने जन्नत भी दी, अपनी रजा भी दी, बैत भी वापस ली, लेके जाने वाले चले भी गए। और भाई अदनान, मैं तहकीक कर बैठा हूँ, आपके मिंबर से हैदरी साहब एक बात होती है कि जो आए थे वो ठहरे रहे, ऐसा नहीं है। रियाजुल कुद्स ने भी, साहिब रियाजुल कुद्स ने भी अपनी किताब में लिखा, जब सरकार ने फरमाया ना मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, 4 साल की शहजादी से रिवायत आज भी रियाजुल कुद्स में लिखी है, जब हमारे बाबा ने फरमाया मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, लोग जौक दर जौक बाबा को छोड़ के जाने लगे उस वक्त जब बाबा ने चिराग बुझाया था। ये जिनकी तहकीक नहीं है वो मिंबरों पे आके कहते हैं ओ नहीं जी जो आए थे वो खड़े रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे इमाम ने अनवांटेड को छुट्टी दी, वांटेड को सीने से लगाया। मामला आगे का बड़ा कमाल था। शाजी एक मैं राज खोलने लगा हूं छोटा सा। रसूल ने जो घर हरम में मट्टी दी थी, जो करबला पहुंचने पर इमाम मजलूम की जेब अत्तर में थी, बाबा जी गौर कीजिएगा, बात सामने यकीनन इमरान भाई अता है। हाँ, सरकार ने करबला की मट्टी उठवाई, जब घोड़ा खड़ा किया करबला की मट्टी उठवाई, ये वाली मट्टी उठाई, दोनों मट्टियों को सूंघा, फरमाते हैं ये वही जगह है। करबला की मट्टी सूंघ कर फरमाते वही जगह है, वही जगह है। बातें करने लगा हूं, अगर घबरा ना जाओ, मुझे नहीं पता इस मट्टी में कब से हुसैन और असहाबे हुसैन का खून शामिल है। ओए हो अल्लाह अकबर, मुझे नहीं अंदाजा, खुशबू वही, फरमाया हमारे खून की खुशबू आ रही है। शाजी है अदनान, ऐसे नहीं है। मट्टी उठा के चले, आपकी तवज्जो हो गई, सफर आगे करते हैं। कुछ मांगो, कहा कुछ नहीं, कुछ तो मांगो, कहा कुछ भी नहीं। जन्नत कहा का ले जाने वाले चले गए। अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी ने मवाइज़ हसना में, मुहक्किक बंदे हैं, अपनी किताब में लिखा है जब इमाम मजलूम ने लोगों को गदीर शादी जन्नत दी थी, 3000 कुछ लोग इमाम को छोड़ के चले गए। 3000 कुछ लोग इमाम को छोड़कर चले गए। इमाम से बताओ, जितने बैठे हो मवालिया ने हैदर करार, क्या आप लोग इस बात पे मुत्तफिक नहीं, जिसको जन्नत का सरदार कह दे मैं जमानत देता हूं मुझे छोड़ के चले जाओ, और वो छोड़ के चले जाए, वो जन्नत नहीं जाएंगे? हैं जी? नहीं, कम घबरा गए हो? मेंबर पे मैं खड़ा हूं, मैं सवालों के जवाब दलील के साथ दूंगा, परेशान ना हो, मेरी हाँ में हाँ तो मिलाओ, नहीं है तो रोक दो। मैंने अहले सुन्नत उलमा से पूछा जिनको सरकार हुसैन बादशाह फरमाए तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूं मुझे छोड़ के चले जाओ, उन्होंने कहा जिनको हुसैन कह दे वो जन्नत जाएंगे। 3000 कुछ लोग, ये किताबें हमारी मकातिल की में लिखा है, साहिबान मुहक्किकीन ने, उन बंदों ने नहीं जिन्होंने 4 किताबें इकट्ठी की, 5वीं अपने नाम की 4 से लिख के देख के अपने नाम की किताब छाप दी, उसने नहीं जिसने तहकीक की है। और आपके कौम में साहिबान मुहक्किक बहुत कम है, आजकल तुम नापैद हैं, अदान भी ऐसे है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तवज्जो है, घबरा तो नहीं है। अब मेरा सवाल है इमरान शाह जी, हैदरी साहब, अदनान शाह जी, जितने भाई बैठे हो तशरीफ फरमाओ, गदीर भाई, जो छोड़ गए वो तो जन्नत जाएंगे, मेरा सवाल है फिर 72 की मंजिल क्या है? मेरी सवाल का जवाब अभी तक मेरे सामने नहीं आ सका। 72 की मंजिल क्या है? छोटा सा जवाब दिए देता हूं, वरना इनके राजों की हकीकत इनका वारिस आके खोलेंगे। छोटा सा जवाब देने की कोशिश करता हूं। कोई पूछे ना, असद बुखारी आए थे जी, वो कह गए 72 जन्नत नहीं गए, वो गए जो छोड़ गए थे। 72 कहाँ है? बुखारी साहब नई सोच फिक्र दे के चले गए, हमें तो परेशान करके चले गए। 72 कहाँ है? उनको बताना, जब सरकार ने अमर फरमाया मैं इमाम ज़माना हो के हुक्म देता हूँ कुछ मांगो, सब ने यक ज़बान होकर, पहले बारी बारी फिर यक ज़बान होकर एक ही बात की थी, आका हमें अपने आप से जुदा न कर। मांगा तो क्या मांगा? जुदा न करना। और कोई कहे कि ये बुखारी साहब कह के गए जी ये जन्नत नहीं गए, तो कहाँ गए?
ان کو بتا دینا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی خاک شفا ملے ذرا غور سے دیکھنا، جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں آج بھی 72 نظر آئیں گے۔ انہوں نے مانگا تھا قرب، ملا یا نہیں؟ وہ کیا قرب ہے جو ایک لمحے کا ہو؟ یہ کیا بات ہے حیدری صاحب، وہ کیا قرب ہے ایک لمحے کا ہو پھر ختم ہو جائے؟ قرب تو وہ ہے ہمیشہ کا قرب ہو۔ اب سوچتے ضرور رہنا، ولایت کی حقیقت پہ نہ پہنچنے والوں کے لیے ایک میرا چھوٹا سا میسج ہے۔ میں محبت سے درس دیتا ہوں، محبت سے بات کرتا ہوں، سختی نہیں کرتا، لیکن چھوٹی سی بات ضرور کرتا ہوں۔ سارے علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ہماری عبادات کی قبولیت میں سجدگاہ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ کربلا کی مٹی رکھی جائے تو زیادہ فضیلت ہے، اگر کربلا کی مٹی نہ ہو تو مجبوری میں یہ چیزیں استعمال کر لو۔ کربلا کی مٹی ہو تو پریفر کرنا، کربلا کی مٹی کو سجدے گاہ میں رکھنا، سجدے گاہ کے طور پہ رکھنا۔ کربلا کی مٹی میں 72 بھی شامل ہیں، صرف خیال حسین کا نہیں آتا۔ کیا مانگا؟ قرب۔ کیا کمال مودت کی ہے، جو رسول نے فرمایا تھا یہ پورے اترے ہیں۔ بس میں جلدی سمیٹنے لگا ہوں، میں آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا کیونکہ ماشاءاللہ پسینے بھی آ رہے ہیں، گرمی بھی ہے، لیکن یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ بھائی ابھی کتنی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے، قائم کے منتظرین کی شان۔ عدنان بھائی جس دن یہ سمجھ آ گئی نا معاملہ کچھ اور ہو جائے، آپ بالکل کمال بات کر، لو ادرکتا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر میں مہدی کو پالوں میں اس کی خدمت کروں، یہ چھوٹی بات نہیں فرمایا گیا ہے، بہت بڑی بات فرما گئے۔ دوسری بات فرما گئے، قائم کے منتظروں کا تذکرہ زمین سے زیادہ آسمان پہ ہوتا ہے، جو زمین پہ شہرت نہیں چاہتے پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ بات مکمل کروں، سوال کیا تھا؟ قل لا اسأل، کہہ دیں سوال کرتا ہوں۔ سوال ختم نہیں ہوا، پتہ ہے آپ کو؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ بلندر سرکار جب تشریف لائیں گے، میرا دل ہے عدنان بھائی آپ کے علاقے کے لوگ مجھ سے میں چند ایک سوالات لے لوں سرکار کے حوالے سے، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں میں اب سمیٹ دوں باتیں، تو یہ کھلے تو کم از کم خمسہ چاہیے، یہ بات میں چھیڑ بیٹھا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ کے صاحب و زمان، میرے صاحب و زمان، ہم سب کے صاحب و زمان، ہم سب کے امام زمان۔ امام زمان کو سمجھنے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی پہ لکھے ہوئے پیچھے جملے پہ غور کیا کرو، گل ویلے دی پھل موسم دا۔ بسم اللہ، یہ لکھا ہوتا ہے نا، ہے جی؟ ہاں جی بسم اللہ۔ امام زمان سرکار اپنے خطبے میں دنیا والوں سے ایک اعلان کر کے کعبے پہ کھڑے ہو کر جو خطبہ دیں گے، اس خطبے میں یہ فرمائیں گے، دنیا والوں ہمارے نانا نے فرمایا تھا قل لا اسأل، اب میں محمد کی محمد شبیہ بن کر دنیا سے سوال کرتا ہوں، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ خدا کی قسم بھائی عمران یہی جملے ہیں، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ چھوڑنا تھوڑی ہے، جس کا سوال ہوا اس کا جواب نہیں لینا، امت سے لینا جواب۔ سوال کیا تھا رسول نے اللہ کے حکم پر، میرے رسول سوال کرے امت جواب نہ دے، سوال کا جواب لینا ہے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے کائنات کے حقیقی قبلہ نے۔ سرکار تقی بہجت کی بات کی، کیا بات ہے، عز اللہ مقامہ و نور اللہ مرکز ہو، بڑے عارف ہستی۔ ایک دفعہ حرم معصوم قوم صلوات اللہ علیہ وسلم، عمران شاہ جی جا رہے ہیں، کمر جھکی ہے، جا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، بڑے عارف ہے امام زمان ہے، کیا بات ہے، کیا کمال چھپا ہے ان میں۔ کبھی میں ان کی بات بھی آپ کو جو ان کے شاگرد نے مجھے بتائی ہیں، بڑی گہری گہری راز کی باتیں، میں تو حیران رہ گیا، گزارش کروں گا، لیکن جتنی ابھی بات ہے وہ اپنے ذہن نشین کیجئے۔ کہتے ہیں حرم میں جا رہے ہیں، آگے رش لگا ہے،
4 5 6 शागिर्द साथ हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, आवाज दे के कहते हैं शागिर्द रास्ता दे दो, फारसी में कहते हैं किबला साहब आ गए, किबला साहब आ गए। कहते हैं तकी बैजत की कमर झुकी थी, सीधा खड़ा होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहाँ है किबला? लोगों ने कहा हम आपको कह रहे थे किबला। फरमाते हैं रो के, आंसू कहते हैं, बकायदा मैंने देखे, रो के कहते तुम्हें पता ही नहीं किबला कहते किसे। दरूद पड़े चैन से। किबला तो लोगों को पाक करता है। इमरान शाह जी किसी दिन हुक्म कीजिएगा इसी किबले पे ही बात करें, क्या बात है। किबला काबा, काबा किबला, बंदे बड़े खुश हो जाते हैं मुझ जैसे, वो क्या बात है, काबा किबला आ गए। हाँ जी, किबले का ये हक है कि किबला हर वक्त मखलूक के लिए हिदायत का सामान बना रहे, और उसकी सबसे बड़ी अदनान भाई दलील ये है कि हम गदीर नमाज के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वल अम्र ज़मान, अल-अमान 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 मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान व मिन जौर ज़मान। यहाँ थोड़ी देर पहले इशा हुई है, किसी और मुल्क में अब इशा होगी, किसी और मुल्क में मगरिब इशा इससे लेट होगी, किसी और मुल्क में जब हम सुबह पढ़ रहे होंगे वहाँ इशा हो रही होगी। पूरी दुनिया में 24 घंटे नमाज दुनिया पढ़ती रहती है, पूरी दुनिया के औकात मुख्तलिफ हैं। किसी ने गौर करना हो किबला किसे कहते हैं तो ये गौर सिर्फ इसी बात पे कर ले कि 24 घंटों में हर कायनात के कोने से अल्लाह मान तलब करने वाले को शैतान से भी बचाए, जमाने के जोर से भी बचाए, जमाने के फितनों से बचाए। शर्त गदीर शाह जी ये है कोई बचने वाला हो, तोते की तरह रटने वाला ना हो। शाह जी तोते की तरह रटने वाला इमरान शाह जी ना हो ना। अगर दिल से कोई तलब करे मौला बचा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल ही सवाल करे और कायनात का मालिक रहम ना करे, क्योंकि दरअसल जो नहीं बचता वो दरअसल सवाल ही नहीं कर रहा। वो ऐसी बात है नमाज के नमाज खत्म, पता ही नहीं हो सरकार के अलकाब में छुपा क्या है। शरीक अल कुरान, पहले तो ये फैसला करो ये कुरान के शरीक है या कुरान इनका। फिर कम अज कम गौर करो कि ये आम नहीं शरीक हैं कुरान के। हैदरी साहब ने यहाँ शॉप खोली, पिंडी गेट में शॉप खोली, इन्होंने ऐलान किया जी मैं जो शॉप खोल बैठा हूँ, जो बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, मैं मलाइका को अपना शरीक बनाने लगा हूँ। बंदों ने कहा हैदरी साहब क्या करते हैं, फरिश्तों को अपना शरीक बनाएंगे, कौन आपकी दुकान से कुछ चीज लेने आएगा, फरिश्तों से तो लोग वैसे डरते हैं। उन्होंने कहा कुदसियां इल्मान उड़े, उन्होंने कहा छड्डो जी हैदरी जी शरीक बनाना दे तो फिर अपने जिया बढ़ाओ, दुकान चलानी है तो अपने जे शरीक बढ़ाओ। ऐ शिरकत अले कम नहीं, शिरकत शरीक वो होता है जो हम जात हो हम सिंफ हो। दूर ना चली जाए बात, वापिस लाने लगा। सरकार को दिल से कहा करो अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान मैं फितनत ज़मान। अच्छा है सब एक और बात करता जाऊं, बातें तो ढेर है, अदनान आपका मजमा थक ना जाए। आधा तो पिंडी गेट से आए बैठे हैं और वो भी आए बैठे हैं जन से। अच्छा छोटी सी बात आज करता जाऊं। अब किसी बंदे ने अभी मगरिब के बाद कहा अल्लाह मान, एक जुमला बड़ा लतीफ है अदनान जी। रात को मगरिब के बाद नमाज मगरिबैन पढ़ने के बाद उसने कहा अल्लाह मान, खाना खाया सो गया, सुबह उसने नमाज पढ़ी फिर कहा अल्लाह मान, फिर दोपहर में उसने फिर कहा नमाज ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, फिर कहा अल्लाह मान। बस काफी है एक वक्त में कह दिया अल्लाह मान? कहा नहीं 5 वक्त में कहा। मैंने तखय्युल में पूछा, मैं तखय्युल में शायर भी बातें करता है ना, मैंने कहा मौला ये 5 वक्त में क्यों अल्लाह मान कहलवाता है? फरमाया इसलिए ताकि इनको पंचन पाक की हकीकत का अंदाजा हो। मौला एक दफा इन्होंने अल्लाह मान कह दिया, रहम कर दे। कहा नहीं फिर कहे। मैंने कहा मौला बस एक दफा। कहा नहीं, इन्होंने सुबह रोटी खाई, दोपहर में इनको खाने पीने की तलब होती है। जी मौला होती है।
اگر ان کو دوپہر میں کھانے کی طلب ہوتی ہے تو پھر رحم کی بھی طلب ہوتی ہے. سمیٹتے ہیں بات، بس اتنا کافی سمجھیے گا. باتیں ہماری ڈھیروں ہو گئی، اتنا کافی سمجھیے گا. ہمیں حکم ہے مودت کا حق ادا کرنے کا، اور مولا کی عزت کی قسم، سرکار کی موجودگی کی قسم، قسمیں میں اٹھاتا نہیں، وفا کے بادشاہ کے پاک علم کی قسم، اس گھر اتر کے جو کریم ابن کریم ہے، سب کی قسم، مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، ہاتھ اوپر رکھنے کا نام ہے. میں آسانی سے آرام سے عرض کرتا ہوں، بچے تک بات پہنچ جائے. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. محبت ہے، مودت یہ ہے تیرا احسان، تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھنے کا قابل بنایا، مہربانی. عزاداری کی، عزاداری کرائی. میں نے عزاداری کی، میں نے اتنے بندے پڑھائے، میں نے مجلس کی، میں نے مجلس کرائی. سوری ٹو سے مودت نہیں ہے. میں مجلس پہ بیٹھا جی، میں نے مجلس جا کے سنی، یہ بھی مودت نہیں ہے. پوچھو شاہ جی آیا جو ہے بتا کے جانا مودت کیا ہے. مودت یہ ہے میں مجلس پہ نہیں بیٹھا، 14 نے مجھے ہمسایہ بنایا. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، مہربانی بھائی، بہت شکریہ شکریہ. میرے اوپر ان کا احسان ہے، مجھے انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھنے کے قابل بنایا. میں کہاں وہ کہاں. میں نے عزاداری کی نہیں، مجھے انہوں نے قابل بنایا، میرا کوئی کمال نہیں. اگر مجھے اس قابل نہ بناتے میں یہ نہیں کر سکتا تھا. غدیر بھائی، امتیاز بھائی، ممتاز بھائی اور عدنان بھائی، عمران بھائی، جتنے سادات تشریف فرما ہو، جتنے موالیان حیدر قرار بیٹھے ہو، آنے والا دور آپ کا بہت مشکل آ رہا ہے. آج میری بات نوٹ کر لو، بہت مشکل آ رہا ہے. آنے والے دور میں کسی نے کہا نا میں سید ہوں، میں مومن ہوں، میں موالی ہوں، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے کہنا یہ دیکھو شناختی کارڈ پہ کلیم عباس ول غلام عباس، سید فلانا شاہ ول سید فلانا شاہ. سوری ٹو سے آپ کو کسی نے نہیں ماننا. آپ سے کہا جائے گا اگر تم ان کے چاہنے والے ہو ذرا درخت کو کہو نا چل کے آئے. اور یہ ایسا ہو سکتا ہے، کائنات کی سچی زبانوں نے جب فرما دیا اس کا مطلب پاسبل ہے. صرف مودت کرنی پڑے گی. بس بازار میں جا رہے ہو، سامنے خاتون نظر آ گئی، محبت کہے گی کوئی بات نہیں، کم حسین میں رو لینا، معافی مل جائے گی. مودت کہے گی یہ نہ کر، یہ آنکھیں تیری نہیں، تیرے پاس اس کی امانت ہے. محبت کہے گی کوئی بات نہیں، آج گناہ کر لو، کل سے ثواب کرنا، کل آئے گی. نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں اگلے. مگر اندر ایک امام وقت کی آواز موجود ہے جسے ضمیر کہتے ہیں. وہ انسان کو لازمی ٹوکتا ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، ٹھیک نہیں ہے. کئی دفعہ اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا. بندہ گلہ لے کے آ گیا، جی فلاں بندہ آپ کا گلہ کر رہا تھا، آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہا تھا. جی کون ہے؟ جی آل محمد کا وہ چاہنے والا ہے، وہ بھی چاہنے والوں میں سے ہے. اچھا پہلے تو یہ بتا تو میرا کون سا رشتہ دار ہے جو ایسا پیغام تو مجھ تک لے کے آیا ہے. بڑی اہم، میں یقین کیجیے گا، یاد رکھیے گا. عدنان بھائی ان کو تشریح آپ خود ہی کرائیے گا. عمران بھائی یقین کیجیے جب تک کریکٹر بلڈنگ نہ ہوئی ہم سے سفر نہیں ہوتا. ہم ٹمکٹویاں مارتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، یہ ادھر ہو گیا اور زمین آسمان یہ ہو گیا، ولایت یہ ہو گیا. علی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں گھر کر جائے. شاہ جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک عارف ہستی نے قلم اٹھایا، بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا علی اس کائنات کے بلند سے بلند کمال کا نام ہے جس دل میں گھر کر جائے، پھر وہ دل کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہوتا ہے.
आगे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। इमरान शाह जी बंद मजमा समाल जाए अदनान में बात मुकम्मल करने लगा। भाई उन्होंने इसकी दलील में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने काबा से ज्यादा मोहतरम इसलिए, भाई मुमताज मेरी तरफ देखना, उन्होंने काबा से ज्यादा मोहतरम इसलिए अली काबे में एक दफा है, मोमिन के दिल में हर वक्त है। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। इंसान किसी चीज से मोहब्बत करता हो, किसी खातून से मोहब्बत करता हो, मिंबर की बातें नहीं है लेकिन क्या करें, मजबूरी है समझाने के लिए। ईमान से बताओ, जिस खातून से वो मोहब्बत करता है उसके अलावा कोई खातून उसको अच्छी लगती है? नहीं। यही तो कमाल है, मोहब्बत हमेशा एक से होती है। जो दिल में बैठा हो उसके होते हुए कोई दूसरा दिल में नहीं बैठ सकता। आओ बस इस दौर में मवद्दत के मिस्ताक का नाम है बिसरे अली, फरजंद हसन, वारिस हुसैन, सरदार जमाना, मालिक जमाना, कायम जमाना, शहनशाह जमाना, सुल्तान जमाना, सरदार है। मवद्दत का हक अदा करो। भाई ने सारी बातों का एक निचोड़ देने लगा हूं अदनान जी, फिर शेर पढ़ूंगा फिर सवाल लूंगा, बस बहुत मैं गुजारिश कर गया। इतनी फजीलत क्यों बताई गई है एक कायम के नासिर की? हकीकत क्या छुपी है? सिर्फ एक रात से पर्दा उठाना चाहूंगा। क्यों कहा गया, क्यों नहीं कहा गया फलाने दौर का फलाना आशिक जमीन पर चले, वो जमीन बाकी जमीनों पर फख्र करेगी? नहीं कहा गया कायम का आशिक। क्यों कहा गया है? सिर्फ एक बात करने लगा, अगर मैं पहुंचा पाऊं। इसके पीछे जो हकीकत छुपी थी वो ये थी, जितने बड़े आशिक हैदरी साहब गुजरे हैं, मैं एक एक का नाम नहीं लेता, मैं तस्करा कर गया आपके सामने। सन 61 हिजरी में गुजरे हैं या उससे पहले गुजरे हैं या उसके बाद गुजरे हैं, जितने भी आशिक गुजरे हैं, हर दौर के आशिक ने अपनी अपनी हुज्जत से वफा की, मवद्दत की। उसको देख के मवद्दत करना और है, गैबत में करना और है। देख के मानना और है, गैबत में मानना। बात मुकम्मल करूं, अर्ज कर रहा हूं, लोग आए थे अपनी मोहब्बतों का हिसाब करने, भूल तो नहीं गए? लोग आए थे, अभी इस पे मेरा दिल था मैं बहुत कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करूं, लेकिन इतना ही काफी, समझिएगा, संभाल लो तो बड़ी बात है। लोग आए थे अदनान जी अपनी मोहब्बतों का हिसाब करने। किताबे मवद्दत खुली तो हर कर्जदार था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फराजहुम बिकाइमिहिम अज्जलल्लाहु फराज शरीफ। मैं चाहूंगा जितने अहबाब तशरीफ फरमा हो, मेरी इस गुफ्तगू से मुंसलिक या साहिब ज़मान के हवाले से कुछ पूछना चाहो, मैं सलूनी के पाक मालिक से खैरात मांग के आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अच्छी बात आपने की है नकवी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। गैबत में सादात व मोमिनीन के फराइज, सबसे बड़ा फरीजा सादात व मोमिनीन का ये है कि आपस में इत्तेहाद की फिजा कायम रखें। एक बात बताओ, जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, मौला को के ज़हूर पे सारे इकट्ठे रहोगे ना? या किसी ने कहना है मौला नहीं, मैं इस सल्तनत में नहीं रहता, मुझे उस सल्तनत में डाल, ऐसा होने नहीं, सब एक जगह रहोगे। अगर उस ज़हूर में उधर रहोगे तो आप भी। यहाँ सादात की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सादात सरदार है, सरदार उम्मत को साथ लेके चलता है, उम्मत को रास्ते में नहीं छोड़ता, उम्मत पे उंगलियां नहीं उठाता। हर किस्म के लोग होते हैं, कमजोर भी होते हैं, नातमा भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, साथ लेके चलता है। मगर साथ वो लेके चलेगा जिसका इंजन खुद मजबूत होगा। ये बड़ा जरूरी है जी। वही पीछे चाहे हजार छकड़े लगा दो, इंजन का स्ट्रांग होना जरूरी है। और इंजन के स्ट्रांग होने से मुराद ये नहीं है कि बंदा मोटा ताजा हट्टा कट्टा हो। सॉरी टू से, सैयद वो हो उम्मती घर बुलाए,
माँ बहन बेटी समझ के उस घर में रहे। हम हैं ही उनकी औलादें जिनके बुजुर्गों को लोग घर में रखना बरकत समझते थे, आज शहीदों को घर आने के लिए घबराते हैं। इंजन का रूहानी होना बहुत मजबूत है। रूहानी कैसे होगा? पाकीज़ा, खुदा की कसम, बात आपने कही है तो मैं काज करने लगा, वरना मैं करता ना। अगर अल्लाह चाहता है कि आले मोहम्मद से रिजस दूर रहे, इमाम की इज्जत की कसम, इमाम की मौजूदगी की कसम, इमाम चाहते हैं हमारे आशिक से भी रिजस दूर रहे। ये मजालिस किस लिए है? कभी गौर किए? कभी गौर फरमाए ये मजालिस किस लिए है? सिर्फ मखलूक खुदा को रिजासत से बचाने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर सबसे बड़ी चीज जो है वो यही है। कैसे नारे मारते हो अली के फजाइल पे, क्या कमाल छुपा है? मसाइब में रोते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें आम है, तुम्हारे आंसू आम है। मैंने एक रिवायत पढ़ी, हैदरी साहब, जब इंसान गम में हुसैन में रोता है और उसके आंसू शहजादी के रुमाल की जीनत, मैं से मसाइब नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ जुमला कहना है, जीनत बनते हैं, वो ऐसे समझे उसकी आंखें दुनिया में पहली दफा खुली है। जब इंसान शुरू में आता है पाकीज़ा नहीं होता। सादात को मजबूत होना बहुत जरूरी है, रूहानियत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सादात को मखलूक के झगड़े में शामिल नहीं होना चाहिए, मखलूक की सुलह में किरदार अदा करना चाहिए। सादात को मुखालिफीन आले मोहम्मद को मौका देना चाहिए। इमरान शाह जी, गदीर शाह जी और भाई अदनान में गुजारिश करने लगा हूं, इसलिए मौका देना चाहिए। कल को जमाने का हुसैन किसी को भी हुर बना सकता है। जमाने का बड़ी मेहरबानी है। जिससे आज हम मुखालफत करते हैं, कल को इमाम ने उस पर करम कर दिया, रहम कर दिया, तो उम्र में क्या कहेंगे? और छड्डो जी, ऐसी देन इस काबिल ही नहीं समझते इमाम। नहीं, जब तक लश्कर हुसैन में नहीं आया लईन था, जब दाखिल हो गया इल्लीन में से बन गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी छुपी है पहले सादात की। सादात अपने जमाने के इमाम को अपने घर का चीफ समझो, चीफ ऑफ सादात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। कुछ भी न समझो, चीफ तो समझो ना। सरदार को हमेशा हमा वक्त अपने सामने मौजूद। और इस दलील में भाई इमरान शाह जी बंदे थक गए। हैदरी साहब मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं कौन सी कुव्वतें बुलवाना चाह रही हैं। मैं तो काफी देर से सोच रहा हूँ, इतना ही काफी है कि इनके सरों से ऊपर बात ना गुजर जाए। पता नहीं कौन कौन किसके लिए मुझे बुलवा रहे हैं। मासूम ने फरमाया, जहां तुम अकेले हो, तुम्हारा जमाने का इमाम फरमाते, जहां तुम अकेले हो कभी अपने आप को अकेला ना समझा करो, वहां दूसरा मैं होता हूं। जहां तुम दो हो तीसरा मैं होता हूं, जहां तुम तीन हो चौथा मैं होता हूं, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। और सरकार का ये फरमान भी है, दो वजूहात से खून रोता हूं, एक करबला वालों पे, एक चाहने वालों के अमाल पे। करबला वालों पे इमाम का खून रोना तो समझ आता है, चाहने वालों के अमाल, वो चाहने वाला ही नहीं होता जो इमाम को खून रुलाने का सबब बने। सादात मोमिनीन के बड़े फराइज हैं, बहुत ज्यादा इमरान भाई, बहुत ज्यादा। छोटी सी गुफ्तगू में तफसीलन इजहार करना मुमकिन नहीं। कम से कम दो बातें आज संभाल लेना, आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक। गैरों को ऐसा नमूना पेश करो, अगले बताना ना पड़े हमारा अली इतना बुलंद था। आपके बुलंद किरदार को देख के मान जाएं, जिसके नौकर इतना बुलंद किरदार वाले हैं उसका मौला क्या होगा। दूसरा पाकीज़गी, दो ही पल्ले बांध दो, ये भी बड़ी बात है। बाकी इंशाअल्लाह तौफीक मांगते रहो, खैरात अता होती रहे। कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बशादी डेली की बुनियाद की मतलब मजालिस हो रही है जी, और मतलब हर मजलिस में इमाम ज़माना सरकार का जिक्र पाक भी हो रहा है, मतलब हर आने मासूमी सरकार का जी। तो उस मजलिस के बाद मतलब है कि बहुत ही मतलब है कि ये इतना कम होता है कि उस बात का असर हो। आपने ठीक फरमाया, बताने वाले किरदार मजबूत नहीं है, वरना बताने वाले किरदार के मजबूत हों तो इंशाअल्लाह असर जरूर होगा। नंबर एक। नंबर दो, सुनने वाले भी जस्ट सवाब की नीयत से आए हैं।
जन्नत फ्रंट पॉकेट में डालने आए हैं। जब सुनने वाले को ये पता चलेगा करबला दर्सगाह है, मंजिल नहीं, करबला रास्ता है, नहीं गौर फरमाया, हक का सीधा रास्ता करबला, करबला है हमारी दर्सगाह। दर्सगाह से क्या लिया जाता है इम्तियाज भाई? दर्स लिया जाता है, दर्स लिया जाता है ना। करबला से क्या लेने हमने? शाबाश, सबक, दर्स। और दूसरा नारा है हक का सीधा रास्ता। रास्ते कहाँ पहुंचाते हैं बंदे को? शाबाश। अगर करबला रास्ता है, काज़मैन भी रास्ता है, नजफ भी रास्ता है, मदीना भी रास्ता है, मक्का भी रास्ता है, सलमान भी रास्ता है, मैसम भी रास्ता है, कंबर भी रास्ता है, 72 भी रास्ता है, अबू बसीर भी रास्ता है, अहमद बिन इसहाक कुम्मी भी रास्ता है। हर दौर के आशिक रास्ता है, हर दौर का किरदार रास्ता है। तेरी मेरी हम सब की, मानो या ना मानो, मंजिल का नाम महदी है। कायम आले मोहम्मद तेरी मेरी मंजिल है, सरकार है। और कोई सवाल किसी का हो? असर इसलिए नहीं होता आबिद भाई, आपका सवाल मैंने अगले दिन कायम टीवी कनाडा पे भी इस पे गुफ्तगू की थी। हम बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक नहीं है। असर क्यों नहीं होता? इंशाअल्लाह हम थोड़े से पाक होना शुरू हुए ना, देखिएगा असर क्या कमाल आता है। पाकीज़ा, बस जिस वक्त भी अकेले बैठे कोई ना हो, किसी शैतान को गालिब ना होने दो, समझो दूसरा मेरा मौला मेरे साथ बैठा है। पाकीज़ा होना शुरू हो जाओ, यकीन करो, फिर ज़हन की गिरें खुलना शुरू हो जाएंगी, फिर अपनी हकीकत का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। मैं कौन था, मुझे इन्होंने अपनी मोहब्बत के काबिल बनाया। फिर ऐसा ऐसा राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। जरूर इंशाअल्लाह समझ आएगी, जरूर आएगी। हम सब के लिए दुआ गो हैं, हमें रहना है। मौला सब पे रहम करे। हैदरी साहब, टीवी पे सवाल हुआ, बड़ा अहम सवाल था, मैं चाहता हूँ जवाब उसका यहाँ भी देता जाऊँ, क्योंकि ये पिछले साल गया था मैं। तो सवाल हुआ इमाम के सिर्फ 313 है। जब 313 है तो फिर हमारा तो फायदा ही दुआ करने का, मौला को बुलाने का, मौला के साथ वफा करने का, मौला को वफा का यकीन दिलाने का, हमारा तो फायदा ही है 313। मैंने कहा बहुत सारी दलीलों में से चंद दलीलें पेश करने लगा हूँ। पहली दलील ये है, हम एक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन आवानिही व अंसारे। हमने दुआ में ये नहीं कहा अल्लाहुम्मा जअलनी कमांडर ही। पहली बात। दूसरी बात, ज़हन नशीन रख लो, ये उसका बेटा है जिसने करबला में 71 के 72 कर दिए थे। अगर तुम अपने मिजाज बदल लो तो इंशाअल्लाह ये 313 की बजाय 3 करोड़ 13 कर लेगा। इनसे कौन पूछने वाला, ये तो करीम घर है। बंदे दे पुत्र 80 बन जाइए तो फिर करम चोखा हो जाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अजल अल्लाह।